કરતો હતો એ વાત 2 મિનિટ આગળ ચલાવો અને પછી આપણે તુષારભાઈને સાંભળીએ. હું એમ કહેતો હતો કે એક ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની આવી હતી અને આપણે ગુલામ થઈ ગયા હતા 350 વર્ષ સુધી. અત્યારે આ દેશમાં 5400 જેટલી વિદેશી કંપનીઓ છે, કામ કરે છે, ઉત્પાદન કરે છે, વસ્તુઓ અને સેવાઓનું ઉત્પાદન કરે છે, આપણને વેચે છે, આપણે વાપરીએ છીએ. આપણને ઘણીવાર ખબર પણ નથી હોતી કે આ વસ્તુ સ્વદેશી છે કે વિદેશી કંપનીની છે, બરાબર? અને છતાં આપણે એમ સમજીએ છીએ કે આપણે આઝાદ છીએ. આ દેશના શેર બજાર 11,200 થી વધારે વિદેશી કંપનીઓએ રોકાણ કરેલું. 11,200 થી વધારે. અને હમણાં તમે જોશો કે આપણો રૂપિયો ડોલરની સામે 89 થી એકદમ 90, પછી 91, અને પછી ગઈકાલે 91 રૂપિયા અને 75 પૈસા થઈ ગયો, બરાબર? તો આવું કેમ થયું? તો એનું એક કારણ એવું છે કે જે પેલી 11,200 કંપનીઓ શેર બજારમાં રોકાણ કરવા આવી છે, એમાંની ઘણી બધી કંપનીઓએ $3 અબજ રાતોરાત લઈને જતી. એટલે ડોલરની ડિમાન્ડ વધી એટલે એના ભાવ વધી ગયા. 89 ના સીધા 91, 75 થઈ ગયા. આ થવાનું જ છે જો આપણે આત્મનિર્ભર ના થઈએ તો. એટલે આત્મનિર્ભરતાનો એક નામ, એનાથી વિશેષ કશું છે નહીં, બરાબર? એ આપણને બ્રહ્મ નાખવા માટે છે અને પછી આપણને સ્વદેશી વાપરવાનું કહે છે. મહાત્મા ગાંધીનું સ્વદેશી અને નરેન્દ્ર મોદીનું આત્મનિર્ભર ભારત, આ બેમાં બહુ મોટો તફાવત છે. આ વાત આપણે બરાબર સમજવાની આવશ્યકતા છે. મિત્રો, મેં ઘણી વાત કરી છે એટલે હું અહીંયા અટકું છું અને આપણે તુષારભાઈને જ વધારે સાંભળીએ. નમસ્તે, થેન્ક યુ વેરી મચ. હેમંતભાઈ ખૂબ વિગતે આખા જે છે એ આઝાદી પહેલાથી શરૂ લઈને અત્યાર શરૂથી કરીને અત્યાર સુધીના આપણા એક પ્રવાહને અથવા આપણો જે વિકાસની ગતિ કે વિનાશની ગતિ જે કંઈ છે, પ્રગતિ અધોગતિ બધું જ એમણે આપણી સામે મૂક્યું. કયું સ્વપ્ન જોયું હતું ગાંધી, નહેરુ અને સરદારે, કેવા પ્રકારના વાદ વિવાદ હતા, એ બધી વાતો આપણી સમક્ષ મૂકી છે. એટલે આખું આપણી સામે આઝાદીના આંદોલનનો ઇતિહાસ જે છે એમણે મૂક્યો. તુષારભાઈ, મુખ્ય જે આજનો અમારો ઉદ્દેશ છે, મેં આપને તો ફોન પર તુષારભાઈ આપણી સાથે વાત કરેલી કે કોઈ પણ દેશ કે સમાજ જે છે એ વિકાસ થઈ રહ્યો છે એના 5 પાસા હોય: સામાજિક, આર્થિક, રાજનૈતિક, સાંસ્કૃતિક જે છે અને રાજનૈતિક. આ બધામાં ધાર્મિક ઉન્માદની વાત નથી કરતો, પણ એક સિદ્ધાંતોનો વિકાસ થવો. તો આ દ્રષ્ટિએ નહેરુ, ગાંધી, સરદાર, મૌલાના, સુભાષચંદ્ર બોઝ એવા અનેક લોકો કે જેમણે એક સપનું જોયું હતું ભારતનું, આઝાદ ભારતનું, એ સપના વિશે તમે પણ ખૂબ વાંચ્યું છે, તમે પણ ખૂબ જગ્યાએ જઈને વાત મૂકી છે કે શું સપનું હતું, શું થયું, આજે આપણે ક્યાં ઊભા છીએ અને તમને આવનાર ભવિષ્ય જે છે એ ન મળીએ તો કેવું દેખાય છે, એના વિશે અમારા કાર્યકર્તાઓને આપ સંબોધિત કરો. ધન્યવાદ. નમસ્તે આપ સૌને. રાજીવભાઈ, આપણે મને આ મોકો આપ્યો એની માટે આપનો બહુ આભાર. સંભળાય છે ને બધાને? આપણે જે કહ્યું એ વિષય પર બોલતા પહેલા એટલી વસ્તુઓ મને લાગે છે મારે કહેવી જોઈએ. હેમંતભાઈની જ વાતને થોડીક આગળ લઈ જાઉં તો બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની વિદેશી કંપની હતી. આજે ભલે વિદેશી કંપનીઓ અહીંયા કામ કરતી હોય, પણ આજે જે રાજ કરે છે, ત્યારે આઝાદી પહેલા બ્રિટન સરકારનું રાજ્ય થયું, બ્રિટિશ સલ્તનતનું રાજ્ય થયું, એની પહેલા કંપની રાજ કહેવાતું. એ કંપની રાજ આજે ચાલી રહ્યું છે અને એટલે એની સામે લડવું અઘરું છે, કારણ કે આપણા માણસો આપણને ગુલામ બનાવીને રાખી રહ્યા, ત્યારે તો વિદેશીઓ ગુલામ રાખી રહ્યા. એટલે એની જોડે લડવું, એની સામે લડવું. અને જે તમે કહ્યું આત્મનિર્ભર ને સ્વદેશી, એનો તફાવત એ અંગ્રેજીમાં જે એમને સ્લોગન આપ્યું છે બહુ જ, એટલે એમને જે
સાચું બોલવાની ટેવ ઓછી છે એમાં કોઈ વાર ભૂલ થઈ જાય છે અને સાચું બોલી દે છે. તો એમાં એમણે મેક ઇન ઇન્ડિયા સ્લોગન શું આપ્યું છે? મેક ઇન ઇન્ડિયા. મેક ઇન ઇન્ડિયા અને મેડ ઇન ઇન્ડિયામાં બહુ મોટો ફરક છે. મેક ઇન ઇન્ડિયા એટલે તમે આવો, અમારા ખનીજો વાપરો, અમારા કામગાર વાપરો, પ્રોડક્ટ બનાવો અને અમારે પૈસેથી પ્રોફિટ પણ બનાવો. એ મેક ઇન ઇન્ડિયા. મેડ ઇન ઇન્ડિયા એટલે શું છે કે અમે બનાવીશું, તમારે ખરીદવું પડશે. એ સ્વદેશી અને આત્મનિર્ભરનો ફરક છે. આટલું જ મારે ઉમેરવું હતું આમાં. આપણે બધાએ આ ટોપી પહેરી છે. એ ટોપી ક્યાંથી આવી એનો ઇતિહાસ તમે જાણો છો? કેમ આ ટોપી, કોંગ્રેસ વાળાઓએ કેમ આ ટોપી પહેરી? કોણ જાણે છે એનો ઇતિહાસ? એક ભાઈ છે, કોને? સૂતરમાંથી વાણીને બનાવી. શું? કપાસમાંથી બનાવીને ના ના, એ તો બરાબર છે, પણ કેમ કેમ નહીં કરીએ છીએ? બાપુ, હાજી. જ્યારે આપણે અંગ્રેજો સામે લડવાની ક્યાં ગાંધી બાપુ, ત્યારે તે વખતે આ વ્હાઈટ ટોપી સફેદ કપડા અંગ્રેજ સરકાર એમને જેલવાસની સજા આપતા માટે એની હિંસા થતી હતી. એટલે બીજા ગોરા લોકો વ્હાઈટ કપડા કાઢવાના હતા માટે ત્યાંથી સ્વરાજ મળ્યા પછી તે વ્હાઈટ ટોપી મૂકવાના કોંગ્રેસ અધિકારીઓ. अच्छा गरीबों को रोजगार मिले इसलिए बापू दक्षिण अफ्रीका में जब थे तब से वो हिंदुस्तान जब आते थे भारत में आता कांग्रेसના અધિવેશન વખતે આવતા અને કોંગ્રેસના અધિવેશનમાં અચૂક હાજરી પુરાવતા. કારણ કે કોંગ્રેસના અધિવેશનમાં જઈને દક્ષિણ આફ્રિકામાં ચાલતા સત્યાગ્રહ વિશે કોંગ્રેસને અવગત કરાવતા અને એમને કહેતા કે ભાઈ તમે અમને સહકાર આપો, સપોર્ટ આપો. અને ત્યારે બાપુ જોતા કે કોંગ્રેસમાં જે બધા નેતૃત્વ કરનારા લોકો હતા એ લોકો બધા પોતપોતાની જાતિ પ્રમાણે વેશભૂષા પહેરીને આવતા. એમની પાઘડી, એમના કપડા, એ બધું એમની કઈ જાતના છે, કયા વર્ણના છે એ સૂચવતા. એટલે કોંગ્રેસનું અધિવેશન જ્યારે થતું ત્યારે જાણે આપણે હમણાં છોકરાઓની સ્કૂલમાં ફેન્સી ડ્રેસ હોય છે ને, બધા છોકરાઓ જાત જાતના વેશ કરીને આવે, એવી રીતે બધા વેશ કરીને આવતા અને પોતાની જાતિ અને પોતે સમાજના કયા તબક્કામાં છે એ બતાવવાની કોશિશ કરતા. અને બાપુ હંમેશા એ વિચાર કરતા કે જ્યાં આપણે જ એક નથી ત્યાં આપણે વિદેશી સામે કેવી રીતે લડવાના. એટલે દક્ષિણ આફ્રિકાથી પાછા આવ્યા પછી એમણે વિચાર કર્યો કે આની વિરુદ્ધ શું કરવું. તો એમણે બે ચીજ અમલમાં મૂકી કે કોંગ્રેસમાં તમારે જવું હોય, કોંગ્રેસમાં રહેવું હોય, કોંગ્રેસના કોઈ પણ કાર્યક્રમમાં આવવું હોય તો એક સામાન્ય ટોપી બધાએ કરવાની, જેથી કોઈની પાઘડી, ટોપી, ફેટો એના પરથી એમની જાતિનો કોઈને ખબર ન પડે. આપણે બધા કોંગ્રેસ વાળા છીએ એ ખબર પડે. એ ગર્વથી કોંગ્રેસની આ ટોપીની પ્રથા બાપુએ આપી. એટલે આ વાર્તા કહેવાનું મારું તાત્પર્ય એ હતું કે કોંગ્રેસમાં જો ગર્વ બતાવવો હોય કે હું કોંગ્રેસી છું, એનો મને ગર્વ છે, તો એની એક જ ચિહ્ન છે આ ટોપી. એ ટોપીને કોંગ્રેસની અનિવાર્ય ઓળખ જ્યાં સુધી હતી ત્યાં સુધી કોંગ્રેસની પ્રતિષ્ઠા હતી. એ ટોપી ફેશનમાંથી નીકળી ગઈ અને કોંગ્રેસની પ્રતિષ્ઠા ઘટી. સેવાદળમાં ટકી રહેવું છે એટલે મને બહુ સારું લાગે છે. પણ આનાથી પણ વધુ મહત્વની એક વાત 1942ના સત્યાગ્રહની વાત હું તમને કહેવા માંગુ છું. મુંબઈમાં 1942ના સત્યાગ્રહમાં સામાન્ય લોકો, બધા નેતાઓ તો પકડાઈ ગયા, જેલમાં જતા હતા. यहाँ पे 10-12 लोग हैं वो हिंदी भाषी हैं, हाँ। तो आप तो हिंदी गुजराती दोनों में अच्छा, मुझे हिंदी में भी बोलना है तो मैं हिंदी में ही बोलूँ तो चलेगा? हिंदी में सब कुछ चलेगा.
ठीक है, तो मैं इतनी बोलूंगा। तो बम्बई में जब भारत छोड़ो का आंदोलन हो रहा था तो नेता तो सब गिरफ्तार हो गए थे और सामान्य जनता ने उसमें अपना सत्याग्रह में अपना प्रतिसाद दिया था। तो एक बहुत प्रतिष्ठित घराने की बहू एक दिन सत्याग्रह में गई, बहुत अमीर परिवार की थी, तो गागीने वगैरह पहने हुए थे उसने, और सत्याग्रह में जुड़ी। तभी बहनें विदेशी माल का बहिष्कार करने का सत्याग्रह कर रही थी और दुकानों के सामने जाके, जहाँ विदेशी सामान बिकता था उसके सामने जाके वो लोग पिकेटिंग बोलते थे उसको, वो करते थे और दुकानदार परेशान होकर पुलिस को बुलाती थी, उनको गिरफ्तार किया जाता था। तो ऐसे ही एक सत्याग्रह में जो महिला थी उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो पुलिस की गाड़ी में बैठने से पहले उसको उलझन हो रही थी क्योंकि उसके बदन पे गहने थे, सोना हीरा के गहने थे। उसने सब उतार के एक गठरी, अपने रुमाल में एक गठरी बांध के वो पकड़ के खड़ी थी। फिर एक भाई को देखा उसने और उसने जाके उसको कहा कि भाई मैं तो जेल जा रही हूँ पर मेरे गहने हैं, तो ये मेरा परिवार है, ये हमारा घर का पता है, मैं आपको दे रही हूँ, आप जाके मेरे परिवार वालों को ये दे दीजिए। तो वो जो भाई था उसने कहा कि बहन तुम मुझे जानती नहीं हो, मुझ पर भरोसा कैसे कर सकती कि मैं ये गहने तुम्हारे परिवार में जाके दूंगा, तुम्हें इतना विश्वास क्यों है कि ये हो जाएगा। तो बोले तेरे सर पे जो टोपी तूने पहनी है उस पर मुझे भरोसा है कि जब तक वो टोपी तेरे सर पे है मैं जानता हूँ कि तू बेईमानी नहीं करेगा। ये टोपी की वो प्रतिष्ठा है। ये अपने सबने समझना बहुत जरूरी है कि ये क्यों इतनी बड़ी अपनी धरोहर है। तो फक्र से पहनो, और जब पहनो तो इस टोपी से मिलने वाली ताकत से, तो कहते हैं ना सीना इतना 56 इंच तो नहीं करना है लेकिन 4 इंच और चौड़ा हो जाए इस टोपी के कारण, तो लोगों को भी एहसास होने लगेगा कि नहीं अब इस टोपी में वो वापस निष्ठा और ताकत आ गई। तो ये दो चीज मैं आपको कहना चाहता था कि बहुत अहम धरोहर है कांग्रेस, और कांग्रेस ने अब उनकी धरोहर पे वापस जाना ही होगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं कि हम प्राचीन युग में चले जाए, हमें वर्तमान में ही जीना है और भविष्य के लिए ही काम करना है, लेकिन हमारे भूतकाल के जो परंपराएं हैं, जो राजनीतिक परंपराएं हैं, सामाजिक परंपराएं, उसको हमने वापस लेना है, उससे हमने ताकत लेनी है, उससे हमने शिक्षा प्राप्त करनी। जब लालजी भाई ने मुझे ये न्यौता दिया कि आप आओ, तो मैंने कहा मैं इसीलिए आऊँगा क्योंकि आज कांग्रेस को अपनी ही परंपराओं से अवगत करने की बहुत जरूरत है। जब कांग्रेस ये भूलती जाती है तब तक कांग्रेस कमजोर होती जाती है। आप सारे कार्यकर्ता हैं, तो इसलिए मैं ये बात आपको करना चाहता हूं कि ये याद रहे कि आप किसी नेता के कार्यकर्ता नहीं हो, आपकी वफादारी सिर्फ पक्ष से है। कांग्रेस है तो आप हो, कांग्रेस का नेता है इसलिए आप नहीं हो, कांग्रेस का नेता आपकी वजह से, वो नेता बनता है तो आपके कारण बनता है। आप कार्यकर्ताओं नेताओं के कारण नहीं बनते, आप कार्यकर्ता इसलिए हो कि आपको इस पार्टी से निष्ठा है। आज हम जो देख रहे हैं वो नेता अपने नेतृत्व का फायदा उठाते हैं क्योंकि उनको मालूम है उनके पीछे कार्यकर्ताओं की भीड़ बकरी का झुंड है, और उस झुंड के सर गिनवा के वो अपना नेतृत्व साबित करता है।
जिस दिन उसे ये पता चल जाएगा कि ये जो मेरे साथ है उनके मर्जी के खिलाफ मैं गया तो मैं अकेला हो जाऊंगा, बिछड़ जाऊंगा, तब ये पार्टी वापस पहले जैसी ताकतवर होकर काम कर सकेगी। तब तक ये पार्टी नेताओं की मर्जी पे चलने वाली पार्टी ही मानी जाएगी। ये चीज हम लोग आज एक परिवार के लोग हैं, बाहर का कोई नहीं है, मीडिया का कोई नहीं है, इसलिए हमने ये बातें आपस में करना जरूरी है। खुशामदी की बातें सुन कर हम लोग लाचार हो गए। होता है ना, बहुत अच्छा खाना हर टंक में परोसा जाए तो हम निष्क्रिय हो जाते, हमारी पूरी जिंदगी वो खाने के लिए ही कर जाती। ये सत्ता की भूख हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर वो भूख होगी तो हम लड़ सकेंगे, काम कर सकेंगे। राहुल गांधी पिछले 4 साल से लगातार ये बात कह रहे हैं कि अब संविधान और लोकतंत्र को अगर बचाना है तो रास्ते पर निकलना पड़ेगा। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि कार्यकर्ता में वो क्षमता जो 42 के पहले की थी, वो क्षमता लानी पड़ेगी कि जब वो रास्ते पे निकले तो सरकार कांपने लगे। वो आज नहीं होगा। इसलिए जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं वो किसको संबोधित कर रहे हैं वो आप सोचिए। नेता कभी बाहर नहीं आएगा, नेता तस्वीर निकलवा के चला जाएगा। जब लाठी खाने का वक्त आएगा तो कार्यकर्ताओं ने ही वो धैर्य दिखाना पड़ेगा कि भले लाठी चल जाए, भले गोली चल जाए, हम हटेंगे नहीं। यही चीज 1930 में नमक सत्याग्रह में गुजरात में कांग्रेस ने करके दिखाई। यही चीज पूरे देश में, जो तब कांग्रेसी माने जाते थे, जो सत्याग्रही थे, उन्होंने पूरे देश में नमक सत्याग्रह के दरमियान किया। नमक सत्याग्रह का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो ये लोग जो आज हमको बोल रहे हैं ना कि मुफ्त में मिली आजादी के कारण हमारी ये हालत है, उनके मुंह बंद कर सकेंगे हमने। जो सामान्य लोगों ने उस वक्त ब्रिटिशरों के अत्याचार सहे। मैं आपको 2 किस्से बताना चाहता हूँ। क्वेटा में पठानों का एक जुलूस, जो खान अब्दुल गफ्फार खान के अनुयायी थे, उन्होंने नमक सत्याग्रह का सत्याग्रह क्वेटा की पुलिस थाने के बाहर करने का फैसला किया। क्वेटा के पुलिस अध्यक्ष ने को ये डर लगा कि ये पठान आते हैं और पठान जो बहुत लड़ाकू होते हैं, वो लोग हमको मारेंगे। उसने पुलिस चौकी के ऊपर मशीन गन लगवाई और उसने सबको ये चेतावनी देने लगा कि आप इधर से चलेगा। करीबन 500-600 पठान चौकी के सामने जमा हो गए। चेतावनी दी कि आप चलेगा वरना गोली चलाई जाएगी। पठान हिला नहीं मान सके और किसी बहाने से लेकर उन्होंने ये ऐलान किया कि पठानों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, इसलिए हमने गोली चलाई, मशीन गन चली। एक अहवाल के मुताबिक करीबन 4000 गोलियां चलाई गई उस दौरान। 150 से 200 मौतें हुई। कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा, जाके तहकीकात करो और रिपोर्ट भेजो। पूरे देश में से नमक सत्याग्रह के दरमियान पूरे देश में जहां जहां ब्रिटिशरों ने दमन किया था, कांग्रेस के लोगों ने जाकर वहां अहवाल बनाया और भेजा। यहाँ ऐसा हुआ, इतने लोगों को मारा गया, इतने लोग इंजर हुए, इतने मरे। वो पूरा एक दस्तावेज बेटा से आया हुआ जो दस्तावेज रिपोर्ट था, उसमें एक पठान पख्तून लीडर ने बयान दिया था कि हमारे इस सत्याग्रह की सबसे बड़ी सफलता क्या थी
तो बोले मरने वालों के सारों के सीने पे गोली लगी थी, किसी की पीठ पे गोली नहीं लगी। ये कार्यकर्ता का बल होता है, ये कार्यकर्ता की वीरता होती है, ये कार्यकर्ता का पराक्रम होता है कि जब मौत भी सामने दिखे तो वो सामने मुंह करके मौत के खड़ा हो जाता है, कहता है कि जो हो सके कर दे, मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा। और तब जाके महात्मा गांधी का, सरदार पटेल का, नेहरू का, उनका नेतृत्व साबित होता है कि उनके नेतृत्व में ऐसे कार्यकर्ता बने जो मौत के सामने भी डर के भागे। तो ये कार्यकर्ता का महत्व होता है, ये हमने समझना बहुत जरूरी है। आज के दौर में जब राहुल गांधी कहते हैं कि रास्ते पे निकलो, तो वो ये कहते हैं कि जलियांवाला बाग हो जाए तो भी पीछे हटना नहीं। और हम लोग जब तक ये करेंगे नहीं, तब तक हमारे नेता का जो एक कल्पना है क्रांति की, उसको हम साकार नहीं कर पाएंगे। 42 में सबको अरेस्ट कर दिया गया। ब्रिटिश भी ये समझते थे कि भाई अब तो खत्म, अब तो नेता नहीं है, तो कायगा सत्याग्रह चलेगा। 2.5 साल तक पूरे देश में वो सत्याग्रह चलता रहा। वो छोटी बात नहीं है। आज बगैर नेता का एक भी सत्याग्रह 2 घंटे से आगे ज्यादा चलता हुआ मुझे दिखाई दे लीजिए आप, नहीं होगा। नेता होना ही चाहिए, चाहे वो किसानों का आंदोलन क्यों ना हो। किसानों के नेता वहां सामने खड़े थे, बैठे थे, इसलिए 1 साल तक वहां किसानों का आंदोलन चलता रहा। तो ये जो बात है, ये हमने समझना, हमारी इतिहास में से ये सारी चीजें हमने सीखना बहुत जरूरी है। उस वक्त हमारी प्रजा जो थी, ज्यादातर प्रजा जो थी, वो अनपढ़ गवार थी। पढ़ाई लिखाई का कोई बहुत ज्यादा उस असर नहीं था हमारे समाज में। भयंकर अंधश्रद्धा, लोगों के दिलों में, दिमाग में वहम थे। जाति प्रथा, भयंकर प्रखर जाति प्रथा चल रही थी समाज में। और फिर भी उन सारी कमजोरियों के साथ हमारे नेतृत्व ने ऐसे प्रयोग किए कि जिससे उन चीजों को हम मात करके एकजुट बन के दिखा सके। अहमदाबाद से ही उन प्रयोगों की शुरुआत बापू ने की। तीन प्रयोग अहमदाबाद में किए गए। कोचरब आश्रम में पहला प्रयोग हुआ, जहां एक दलित परिवार को आश्रम में साथ रहने के लिए बापू ने आमंत्रित किया। दूल्हा भाई का परिवार वहां आया, रहने लगा। आश्रम में विद्रोह हुआ। सवर्ण हिंदू के आश्रम में उन्होंने इनकार कर दिया कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे। बापू ने कहा जिनको जाना है चले जाए। कस्तूरबा ने भी कहा कि ये इनके साथ तो मैं नहीं रह सकती हूँ। बापू ने उनको भी कहा तुम भी चले जाओ। पर उन्होंने एक चेतावनी दी कि अगर इस आश्रम की सीमा छोड़कर एक बार गए तो वापस ही नहीं होगा। चाहे वो मेरी पत्नी हो, मेरा परिवार हो या कोई भी हो, वापस नहीं होगा। एक बार आपने निश्चय कर लिया जाना है, आपका हक है, अधिकार है, जा सकते हो। आपको वापस लेने का अधिकार मेरा है, जो मैं नहीं करूँगा। पूरे समाज ने बहिष्कार किया, पानी तक बंद कर दिया। बापू ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं लोगे, हम हमारे बलबूते पर यहाँ जिएंगे, टिकेंगे, लेकिन ये दलित परिवार मेरे साथ ही रहेगा। और अहमदाबाद के ही एक सेठ ने रात के अंधेरे में जाकर बापू को पैसा दिया, बोले तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आपका काम निष्फल होने नहीं दिया जाएगा, आप जो भी मदद चाहे मैं करूंगा, लेकिन लोगों के सामने में नहीं आ सकता। बापू ने फिर निश्चय किया कि मैं शहर के बाहर चला जाऊंगा। तो साबरमती के उस पार
आश्रम स्थापित किया, साबरमती आश्रम, जो सत्याग्रह की प्रयोगशाला थी। और वो सत्याग्रह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, वो सत्याग्रह हमारे समाज में जो दूषण थे उनके खिलाफ की भी प्रयोगशाला। साबरमती आश्रम में भी उन्होंने, जब उन्होंने कहा कि भाई आप लोग अंग्रेजी शिक्षण छोड़ दो, तो ये नहीं कहा कि छोड़ दो और घर बैठ जाओ। उन्होंने राजकीय शिक्षण देने की संस्थाएं शुरू की, स्कूल शुरू की, राष्ट्रीय शाला का उन्होंने एक संस्था बनाई, राष्ट्रीय शाला, और उसमें राष्ट्रीय शिक्षण प्रणाली के अनुसार शिक्षण देना शुरू किया। अहमदाबाद में आश्रम में एक स्कूल बनाई, उसमें भी उन्होंने कहा कि सारी जाति के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ेंगे। सवर्णों के माँ बाप ने आके कहा कि हम हमारे बच्चों को हरिजनों के साथ नहीं बैठने देंगे, गरीबों के साथ नहीं बैठने देंगे, गरीबों को आप क्लासरूम के बाहर बैठाएंगे, हमारे बच्चे भ्रष्ट हो जाएंगे उनके साथ। बापू ने कहा बच्चे तो सारे इधर ही बैठे, आपके बच्चों को नहीं बैठना है तो वो भले बाहर चले जाए, बच्चे बैठेंगे तो इसी वर्ग में। वापस वही बात हुई, बहिष्कार किया, पैसे बंद कर देंगे। बोले आपको पैसे बंद कर देंगे, बंद कर दो, मेरे शिक्षक बगैर तनख्वाह के सिखाए। वो स्कूल चलाई, उसमें से उन्होंने गुजरात विद्यापीठ तक बनाई, गुजरात विद्यापीठ भी बनाई। आश्रम में उन्होंने, जो आश्रमवासी थे उनको सत्याग्रह, पहला असहकार आंदोलन हुआ, चौरी चौरा में हत्याकांड हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरे लोग अभी अहिंसक सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम अभी लड़ेंगे नहीं, मैं उनको प्रशिक्षण दूंगा। और आने वाले 10 साल साबरमती आश्रम में उन्होंने सबको प्रशिक्षण दिया। सेवा दल को मुझे ये बात कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेवा दल की नींव में प्रशिक्षण है। आप सेवा दल के कार्यकर्ता तभी बन सकते हो जब आप प्रशिक्षण शिविरों में से उत्तीर्ण होकर इस दल में काम करना शुरू करो। रानी भाई, ये प्रथा है ना अभी भी? है, पर बहुत कुछ बिगड़ा हुआ भी है, तो अभी सुधार रहे। नहीं, वो तो सुधारना तो है, लेकिन वो परंपरा है, वो परंपरा है, उसका उद्देश्य वही है। क्योंकि सेवा दल के लोग जो है वो सिपाही है, और सिपाही जन्मता नहीं बनता है, वीर जन्मता है, लेकिन सिपाही बनाया जाता है। तो जब तक प्रशिक्षण नहीं होगा सिपाही नहीं बनेगा। और साबरमती आश्रम में वो प्रशिक्षण दिया जाता था कि सत्याग्रह कैसे करना चाहिए। उसकी महिमा इतनी थी कि जिस देश में बापू कभी गए नहीं, उस देश में भी उस अहिंसक सत्याग्रह की महिमा पहुंच गई। अमेरिका में, जिसको हम यूएसए कहते हैं, बापू कभी यूएसए गए नहीं, लेकिन बापू के बाद जब डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने ये तय किया कि मैं मेरे वर्ण के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ूंगा, तो उन्होंने गांधी को पढ़ा और उन्होंने कहा कि इसका जो रास्ता है वो मेरे लोगों के लिए सर्वोच्च रास्ता होगा। तो उन्होंने अपने लीडरों को साबरमती आश्रम भेजा, और साबरमती आश्रम में 6 महीने के कैंप चले, जिसमें उन जो अफ्रीका मूल के अमेरिकन नेता थे उनको प्रशिक्षण दिया गया कि अहिंसक सत्याग्रह कैसे किया जाता है। वो वापस गए, उन्होंने अपने लोगों को वहां ट्रेनिंग दी, और उसमें से मार्टिन लूथर किंग ने जो सत्याग्रह किए अमेरिका में, उसका उद्भव उन लोगों में से हुआ जिनके नेता साबरमती आश्रम में सीख के गए थे। अहमदाबाद का वो गौरव है। विश्व गुरु अहमदाबाद तब था कि जब विश्व में क्रांति की सीख अहमदाबाद से मिलती थी, प्रेरणा अहमदाबाद से मिलती थी। आज खुदगर्जी की ट्रेनिंग अहमदाबाद दे रहा है। देश को हड़पने की जो नियत है उसका मूल, आज आप कहीं पर भी जाओ, एक जमाना था
जब दो गुजरातियों के ऊपर पूरा राष्ट्र क्या पूरा विश्व नाच करता था, आज दो गुजरातियों को ही गाली दी जाती, तो दो गुजरातियों के पराक्रम में ही हमारा नाम नीचा किया जाता है। दो गुजराती और उनके दो गुजराती रहनुमा, पर गुजराती का जो खून है वो सत्याग्रही खून है, ये याद रखा जाए। ये भूलना नहीं है कि सत्याग्रही गुजरात के ही खून में से हुआ, पैदा हुआ और यहीं से सफल होता गया और राष्ट्र को एक आजादी के कगार तक पहुंचाने में गुजराती खून का ही, गुजराती DNA का ही एक हाथ था। ये परंपरा हमने भूली नहीं। मैं यहाँ आया, ये इस मकसद से आया, मैंने सबसे पहला प्रश्न पूछा कि ये भी कांग्रेस का दफ्तर सन 47 में था क्या? 47 में जो कांग्रेस की ऑफिस थी, शहर की, अहमदाबाद की, वो यही थी कि कहीं दूसरी थी? मेरा मकसद ये था क्योंकि सन 47 की 14 अगस्त की मध्यरात को जब तिरंगा फरकाया गया तो कांग्रेस की अहमदाबाद के उस दफ्तर के ऊपर फरकाया गया था। आजाद हिंदुस्तान का सबसे पहला तिरंगा ध्वजारोहण तब हुआ था और पूरा अहमदाबाद शहर वहां गया। तो मेरे लिए वो वहां जाना एक तीर्थ के समान है। अगर शायद मेरे घरों में जाके वहां मत्था टेक के आऊंगा। ये जो हमारी परंपराएं थी उसे हमने याद करके उसमें से हमने शिक्षा लेनी है, प्रेरणा लेनी है, उसमें से हमने अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि उसी परंपरा के चलते तो वो परंपराएं जो है वो उन्हें अपने याद रखना बहुत जरूरी। उस जमाने में जो मैं बात कर रहा था उसमें न सिर्फ आंदोलन की ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन एक आध्यात्मिक विकास हो उस आदमी का, उस इंसान का, उसके ऊपर भी जोर दिया जाता था। नहीं तो जातिवाद के खिलाफ का जो मुहिम चलाते थे वो कभी सफल नहीं होता। अगर आध्यात्मिक सोच विकसित ना हुई होती तो लोग वही कुंठित विचारों में रह जाते थे। तो बापू ने यह भी तय किया था कि सत्याग्रह की सीख में आध्यात्मिक भी होगा। आज क्या हो गया है, धार्मिक सीख दी जाती है, धार्मिक अंधभक्ति का दौर चल रहा है। और धर्म भी क्या बन गया है कि भाई जाके पूजा पाठ ही धर्म बन गया है। और वो भी निष्ठा से नहीं बना, ये डर से बना है कि ये पूजा नहीं करेंगे, ये व्रत नहीं रखेंगे, ये नहीं करेंगे तो हमारा बुरा होगा। या तो कुछ चाहिए तो व्रत करो, चाहिए तो पूजा करो, चाहिए तो रिश्वत दो भगवान। वो आध्यात्म नहीं है, उससे विकास नहीं होता, उससे मन की शक्ति कुंठित होती है। आजकल मैं वापस देखता हूँ बड़े बड़े तिलक वापस दिखने लगे सबके सिराने पर। हाथों में इतनी धागे होते हैं कि अगर खोल के दूसरे हाथ के साथ बांधे तो हथकड़ी बन जाए, इतने धागे यहाँ से यहाँ तक लोगों के दिखते। आज ही मेरे बाजू में ट्रेन में बैठे थे एक जगह, दो सोने के कड़े, रुद्राक्ष की माला और वो लाल पीले धागे इतने सारे बांधे थे। मैंने कहा कि यार तेरे को कपड़ों की क्या जरूरत है, यही पूरे बदन पे बोझ कवर करने के लिए आपको हो जाएगा। नहीं बोले ये बहुत असरकारक है, पवित्र है। मैंने पवित्र नहीं, असरकारक। पवित्र हो तो मैं मान सकता हूँ, असरकारक बोले मेरी सफलता का राज है। आज मैं जो भी हूँ उनके लिए, यानी इधर कुछ नहीं है, जो इधर मान रहा है उसके कारण बन रहे हैं।
इसलिए ये विकास नहीं है, ये तो अधोगति है कि अपने खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, अपने खुद की काबिलियत के ऊपर विश्वास नहीं रहा है कि भाई जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा मेरा कुछ नहीं होगा। भगवान का आशीर्वाद तो तब मिलता है ना कि कर्तव्य करो। हमारे सारी पुराण की कथाएं हमको ये कहती है कि कर्तव्य करने वाले को आशीर्वाद मिलता है, घर पे बैठे रहने वाले को कुछ नहीं मिलता। और फिर भी हम दुआ, आशीर्वाद, फलों के लिए पूजा पाठ के सिवा और कुछ नहीं करते। तो ये जो सारी बातें आई है उसके परे हमें जाना पड़ेगा, उसके आगे हमको निकलना पड़ेगा। हमारे एक जमाना था कि जब इस मुल्क में राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते, राष्ट्रीय त्योहारों का महत्व हुआ करता था और राष्ट्रीय त्योहारों को सब मिलके मनाते। उसमें मुसलमान राष्ट्रीय त्योहार, क्रिश्चियन राष्ट्रीय त्योहार, हिंदू राष्ट्रीय त्योहार नहीं होते थे, सारों के सारे जो भारतीय थे उनका राष्ट्रीय त्योहार होता था। अभी मैं मेरी किताब जो मैंने लिख के पूरी की है उसमें एक बयान है सन 47 में आजादी मिली, उसके साथ साथ बंटवारा पाकिस्तान बना। मुस्लिम लीग के कई नेता, मैं सब नेता नहीं कहूंगा क्योंकि मुस्लिम लीग के भी कई नेता उस वक्त निश्चय करके भारत में गए थे। जिन्ना उनका नेता होने के बावजूद उन्होंने जिन्ना से इनकार कर दिया था पाकिस्तान जाने के। पर जो नेता 47 के विभाजन के बाद जिन्ना के साथ पाकिस्तान चले गए, 48 की 30 जनवरी को जब बापू की हत्या हुई, कई उसमें से मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के नेता 31 तारीख को दिल्ली में वापस आए थे क्योंकि वो भी बापू की हत्या का शोक मना रहे थे जो उनके प्रणेता थे। भले क्या जिन्ना उनके कायदे आजम थे लेकिन बापू की इज्जत और बापू के लिए सम्मान तब भी था। और वो आए थे हिंदुस्तान में जब पंजाब में कत्लेआम अभी जारी था, तब वो लोग आए और भारत ने उनको आने दिया। उनको ना आने देने को राष्ट्रीयता नहीं समझा था, उन्होंने ये समझा था कि इस दुख का अवसर मानवता के लिए दुख का अवसर है, किसी एक धर्म एक राष्ट्र के लिए नहीं, ये सबके लिए। ये भावना असली अध्यात्म की तरफ हमको लेके जा रही है। ये एक विकसित विचार शक्ति के कारण हमारे अंदर ये काबिलियत है और इसके लिए धर्म नहीं लेकिन आध्यात्म का प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। धर्म और आध्यात्म के बीच में फर्क है। आध्यात्म में धर्म होता है, धार्मिकता भी होती है, धार्मिक अंधता नहीं। समझ के, जान के, सीख के धर्म का प्रयोग किया जाता है, जो बापू ने किया। इसलिए बापू अपने आप को सनातनी हिंदू हमेशा कहते थे, गर्व से कहते थे कि मैं सनातनी हिंदू। लेकिन ना मंदिर में जाते थे ना पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे, पर पूजा करने में आजकल तो ये मैं तो बहुत धार्मिक हूँ। क्या करते हो? सुबह 3 घंटे पूजा किए बगैर बाहर नहीं निकलते। 3 घंटे क्यों पूजा करनी पड़ती है? इतने पाप बाकी के 21 घंटे में करता है कि तेरे को 3-3 घंटे प्रायश्चित करना पड़ता है हर रोज, क्योंकि गिल्टी कॉम्प्लेक्स में से होता है, डर में से होता है कि यार मैं इतने सारे पाप करता हूँ, अगर पूजा में भगवान को रिझाऊंगा नहीं तो भगवान मुझे बहुत करने देते। भक्ति में ये करने की जरूरत नहीं, भक्ति में तो काम करने की प्रेरणा है, कार्यरत होने की प्रेरणा है। और राजकीय कार्य भी उतना ही आवश्यक है, सामाजिक कार्य, राजकीय कार्य, और फिर अपने लिए काम। ये एक
श्रृंखला होगी, और वो थी। एक जमाना था जब वो थी, जब ये माना जाता था। लोगों ने अपने करियर छोड़ दिए। साबरमती आश्रम का सबसे पहला जो आश्रम वासियों का परिवार बना, महादेव देसाई और कई अहमदाबाद के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, युवा थे, जिन्होंने अपनी शिक्षा छोड़ दी और जाके बापू के साथ बैठे। पूरी जिंदगी उन्होंने त्याग दी। वो चाहते तो IAS बनते, वो चाहते तो विदेशों में नौकरियां मिल जाती। 1930 का ही आपको एक वाक्य बताता हूँ। सतीश केतकर, वो मुंबई में डॉक्टरी पढ़ रहे थे। बापू ने यहाँ आह्वान किया कि दांडी कूच करेंगे। 3 विद्यार्थियों ने तय किया कि हम बापू के साथ दांडी कूच में जाएंगे। उन्होंने जाके अपने डीन को बोला कि हमको 20 दिन की छुट्टी पढ़ाई में से चाहिए, हम गांधी के साथ चलने वाले। डीन ने कहा कि ये बेवकूफी मत करो, क्योंकि जाओगे तो तुम्हें वापस नहीं लिया जाएगा, और तुम्हारे परिवार ने जो तुम्हारे लिए सपने देखे हैं डॉक्टरी के, वो अधूरे रह जाएंगे और फिर तुम कहीं नहीं पढ़ सकते। उस वक्त, उस क्षण उन तीनों ने कहा भागने जाए तेरी पढ़ाई, हम लोग जा रहे हैं। और वो तीनों यहाँ आकर साबरमती से दांडी तक बापू के साथ चले। उनको मालूम था कि उनकी जिंदगी का जो सपना था, जिसके लिए उन्होंने मेहनत की थी, वो चकनाचूर हो गया। उनके परिवारों का भविष्य उन्होंने त्याग दिया। और ऐसे कई उदाहरण बने जिन्होंने कहा कि नहीं, अभी राष्ट्र को मेरी जरूरत है, मैं मेरी राष्ट्र के लिए जो कर्तव्य है वो निभाऊंगा। ये बातें हमने याद करना जरूरी है, क्योंकि यही हमारी सच्ची धरोहर है। और आज जो ताकतें सत्ता में बैठी है इस राज्य में और राष्ट्र में, वो धीमे धीमे वो सारी बातें इतिहास में से मिटाने का अपना कार्यक्रम कर रही है, क्योंकि उनके पास तो इतिहास की किताब में 2 शब्द भी अपने बताने के लिए नहीं। तो जब तक हमारी इतिहास को वो लोग मिटाएंगे नहीं, तब तक वो ये साबित नहीं करेंगे। उनका मकसद ये है कि हम तुम्हारा भी इतिहास मिटा देंगे, फिर हम दोनों इतिहास बगैर रह जाएंगे। तो ये हमने देखना है कि हमारा इतिहास किताबों में नहीं, दिमागों में, दिलों में होना चाहिए लोगों के। और यही बात, ये जो टोपी सर पे है, वो ऐलान करती है कि ये टोपी में सत्याग्रह है, ये टोपी में स्वराज्य है। और उसी में से जाकर हमको ये मिला है, तो किताबों में से कितना भी इसे मिटा दो, जब तक ये हमारे सर पे गर्व के साथ रहती है, तब तक इसको हम मिटने नहीं देंगे। ये आज की जरूरत हमारे लिए, क्योंकि कल, अगर आज के व्यू पॉइंट से हम कल को देखेंगे तो हमारा भविष्य बहुत खतरनाक दिख रहा है। ये राष्ट्र विनाश की ओर ले जाया जा रहा है, क्योंकि अभी जो सत्ता में है उन्होंने इस राष्ट्र को कभी राष्ट्र माना ही नहीं। जो राष्ट्र संविधान से बनाया गया, जो राष्ट्र सर्वधर्म समभाव की एक वृत्ति से बनाया गया, वो उनको मान्य नहीं है, क्योंकि वो मनुवादी राष्ट्र संकल्पना करना चाहते हैं। और इसलिए सबसे पहला उनका मकसद है कि इस राष्ट्र को खत्म कर दिया जाए, नाश कर दिया जाए इस राष्ट्र का। और फिर अपनी कल्पना का जो राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र, जिसमें जाति वर्चस्व के ऊपर सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाएगी, वो यहाँ प्रस्तावित किया। वो जो हिंदू राष्ट्र कहते हैं, उसमें वो लोगों ने सिर्फ एक चालाकी की, क्योंकि वो जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो सवर्ण हिंदू राष्ट्र, जिसमें सवर्णों के सिवा किसी और को कोई अधिकार होगा नहीं। और जो जिनको हम दलित कहते हैं, उनको तो इंसान होने का भी अधिकार नहीं दिया जाएगा। 5000 साल से वही बात की गई है। पुरुष प्रधान अमीर सवर्ण। शायद हम सबको अपनी सरनेम भी बदलनी पड़े, अंबानी और अडानी बन जाना पड़े, तभी जाके इस
मुल्क में हमको अधिकार प्राप्त हो। पर ये वो बातें ठीक है, हंसी के लिए हम कहते हैं, लेकिन ये खतरा सच्चा है हमारे। इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। अगर ये राष्ट्र रहेगा तो हमारा वजूद, हमारा अस्तित्व रहेगा, हमें लड़ने का अधिकार मिलेगा। अगर ये राष्ट्र खत्म कर दिया गया तो किस चीज के लिए लड़ेंगे? राजाओं के लिए, क्योंकि फिर तो इसका सीधा सीधा वो है कि भाई राजाओं को वापस लाया जाएगा। आज भी राजाओं के वंशजों को पार्लियामेंट में बिठाया जाता है ना। बहुत लोग पूछ रहे थे, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि पहले नहीं थे, उनको भी अधिकार, पर आज जिस तरह से वो लोग अपनी रियासतों में अपने अधिकार जमा रहे हैं, वो हमारे राष्ट्र के संविधान के लिए खतरनाक है। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र, कल ही किसी ने पूछा, मुझे एक प्रश्न पूछा, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे आता है। रिपब्लिक का मतलब जानते हैं क्या होता है? रिपब्लिक क्या होता है? किस चीज को रिपब्लिक कहा जाता है? प्रजासत्ताक। प्रजासत्ताक को, प्रजासत्ताक किसका होता है? नहीं, प्रजा राजा की होती है। जनता और नागरिक प्रजासत्ताक का होता है, क्योंकि प्रजासत्ताक का सबसे छोटा अवयव नागरिक। हम आजादी के बाद हम प्रजा नहीं रहे, हम नागरिक। और हम नागरिक क्यों बने हैं? क्योंकि हमें संविधान है। इस राष्ट्र की पहचान नक्शे का आकार नहीं या एक ध्वज नहीं है, वो हमारी आत्मा है, लेकिन पहचान संविधान में। और संविधान में सबसे पहले 3 शब्द ये लिखे हैं, हम भारत के लोग, हम भारत के ब्राह्मण, हम भारत के क्षत्रिय, हम भारत के हिंदू नहीं लिखा कहीं पर। वो इस राष्ट्र की पहचान है, हम भारत के लोग। हमें हम भारत के हैं ऐसा बनना पड़ेगा। अगर हमारे भविष्य को हमने हमारी इच्छा के अनुसार बनने के लिए जो कार्य करने की जरूरत है वो करना है, तो फिर हमें आज हमारी भूत की जो प्रेरणाएं हैं, भूतकाल की जो प्रेरणाएं हैं, उससे प्रेरित होके ही आगे हम बढ़ पाएंगे, आगे हम कुछ कार्य कर सकेंगे। कांग्रेस की बहुत भयंकर बड़ी विशाल परंपरा है। आज जब दुष्प्रचार किया जाता है तब कई बार कांग्रेस के ही लोगों के मन में प्रश्न उठ जाता है कि भाई इसमें कुछ सच्चाई तो नहीं हो। ये प्रश्न चिन्ह जो है वो उनकी जीत है और हमारी हार है, क्योंकि हमारे दिलों में वो भरोसा होना चाहिए कि हम जो जानते हैं उसके सिवा कोई सत्य नहीं हो सकता, और वो सत्य के ऊपर हमें नाज होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सत्य है वो वास्तविक है, उनका जो सत्य है वो काल्पनिक, क्योंकि उनके पास वास्तव में दिखाने के लिए हरामखोरी और गद्दारी के सिवा कुछ है ही नहीं। ये बात याद रखी जाए कि हमारे पास सत्य है, वो सिर्फ अस्तित्व के, असत्य के ऊपर उनका अस्तित्व टिकाया रख सकते हैं। और वो लोग जो ये करते हैं, जिनका अस्तित्व झूठ होता है, उनको हर रोज नया झूठ बनाकर अपना अस्तित्व टिकाए रखना पड़ता है। जिनका अस्तित्व सत्य में होता है, वो सत्य कभी भी खत्म नहीं होता। ऊपर का जो ढांचा होता है वो कितना भी जर्जरित हो जाए, कमजोर होता है, हो जाए, जो नींव होती है वो कभी टूटती नहीं है। उस नींव को संभाले रखिए। अगर भारत को संभाले रखना है तो कांग्रेस को वो नींव
बनना पड़ेगा। वो नींव कांग्रेस की है, वो ऊपर का जो ढांचा है उसको कितना भी तोड़ दे, वो नींव नहीं तोड़ सकते। बस यही बात है। बहुत बहुत આપણી વચ્ચે આપણા પ્રદેશ પ્રમુખ આ પ્રશ્ન પૂછવાના છે, પ્રશ્ન આવશે આપણી વચ્ચે આપણા પ્રદેશ પ્રમુખ માન્ય અમિતભાઈ આવ્યા છે ત્યારે હું સેવાદળના સાથી નિકેશ કિરણભાઈ પણ આપ ટોપી અને સેક્ટરની આંટીથી સ્વાગત કરશો બંને લોકો। આજે તુષારભાઈએ સફેદ ટોપી વિશેની જે વાત કરી, હું અનેક તાલીમ શિબિરોમાં સફેદ ટોપીની વાત કરતો હોઉં છું। પાછો થોડો મેં આજે હિસ્ટ્રી સર્ચ કરીને વાંચો, આ બધું વાંચ્યા પછી એમ થાય કે આ ટોપી કોઈ દિવસ જે છે ઉતારવી ના જોઈએ, એટલું આપણો આમ ગર્વ થાય એ પ્રકારે અત્યારે મહેસૂસ થઈ રહ્યું છે। હેમંતભાઈ અને તુષારભાઈ બંને અને કોંગ્રેસની મહિલાઓ પણ આ ટોપી પહેરી શકે। હવે એ છોડ પુરુષોનું એટલું એ નથી। અને હવે પહેરે છે। હવે સેવાદળનો બહેનો ટોપી પહેરે છે, આજે કદાચ કેમ ના પહેરીએ, અને ન પહેરવી એના માટે એક વર્ષ બહુ ડિબેટ ચાલી। પહેલા 2018 માં બહેનો ટોપી ના પહેરી શકે, મેં કીધું આ પિતૃસત્તાક સમાજ છે જ નહીં, જે ટોપી ભાઈ પહેરી શકે એ બહેન પહેરી શકે, એ પહેરવી કે ના પહેરવી જાતે નક્કી કરે, પણ કોઈ એની પર પ્રતિબંધ છે નહીં, પહેરી શકે છે। તુષારભાઈ થેન્ક યુ, તમે પણ આ વાતને સમર્થન આપ્યું માટે। टोपी पहनती है और गर्वित होती है। हाँ, पर कुछ कुछ जगह पे अभी भी विरोध भी हो रही है कि महिला टोपी कैसे पहने, ये भी हकीकत है। हाँ, हेमंतभाई અને તુષારભાઈ બંને આખી આપણને આર્થિક, સામાજિક, સાંસ્કૃતિક, રાજનૈતિક સંદર્ભ સાથે અને જે ધાર્મિક ઉન્માદવાળી વાત એ પણ, અને આપણા દેશનું સપનું શું હતું આજે શું છે એની વાત કરી। આપનામાંથી કોઈને સવાલ, आप में से किसी को जो सवाल है तो अभी सवाल जवाब का सेशन हम करेंगे, और सवाल जवाब के बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमको मार्गदर्शित करेंगे। नहीं, एक्चुअली वो बात करने के लिए मैं बोल रही हूँ, वो जो गांधी जी की दारू पीने वाली बात थी, हमारी बात हुई थी उस टाइम पे, जो बीजेपी के एक एमएलए ने बोला था, तो उसके बारे में थोड़ा आप बता दें तो। मैं वही आपको कहना चाहता हूँ कि उनके लिए अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए हमें ऐसी सारी बातों में उलझाए रखना उनके लिए उनकी जरूरत होगी। इसलिए हर दूसरे दिन नई नई बात। इसी गुजरात में से ये शायद किसी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि भाई बापू ने आत्महत्या क्यों की थी, उसका कारण बताओ। नहीं, ये आपको हंसने वाली बात लगेगी, लेकिन ये झूठ प्रचार का एक बहुत अहम प्रयोग है कि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनको ये याद ही ना रहे कि भाई क्या हुआ था 1948 की 30 जनवरी को क्या हुआ था। एक दिन ऐसा आए कि प्रार्थना सभा में अपने पापों का इकरार करने के बाद गांधी ने बंदूक उठाई और सिरहाने रख के गोली मार दी अपने आप को। ये ऐसा भी करेंगे। जो दारू वाली बात है वो इसी प्रयोग का एक पासा है, एक पहलू है। ये बातें हमने समझना जरूरी इसलिए है कि उन्होंने झूठ बोला। उनके अस्तित्व से आज 100 साल से उनको झूठ बोलने की आदत है। वो कैसे सुधरे? उनका अस्तित्व ही झूठा है। मैं माफी चाहता हूं, मैं ये शब्द प्रयोग करता हूं, पर जो मक्कार होता है वो मक्कारी ही कर सकता है, वो खुददारी कभी नहीं कर सकता। इसलिए हमने ये समझ के काम करना बहुत जरूरी है। अगर बापू ने आत्महत्या की तो नथुराम गोडसे को क्यों पूछते हो? उसने क्या किया? 30 जनवरी को एक बूढ़े की हत्या करने के सिवा
उसके पूरे जीवन में दिखा दो ना उसने क्या काम किया है, जिसके कारण आज गांधी के नाम के साथ उसका नाम जुड़ा रहता है। अगर आप ये कहते हो तो ये बताओ, तो फिर वो कौन सी देशभक्ति उसने की? कभी पार्टीशन के दरमियान जिन बहनों के ऊपर हुए अत्याचार का बहाना बनाया उसने और कहा कि उन अत्याचारों का बदला देने के लिए मैंने गांधी को मारा, कोर्ट में बोला उसने। एक बहन का तो उदाहरण वो दे दे कि जिसकी आबरू बचाने के लिए वो जाके खड़ा हुआ था बापू पे गोली चलाने से पहले, नहीं दे पाए क्योंकि किया ही नहीं ना। आज जो आरएसएस छाती ठोक के कहती है कि बंटवारा गांधी ने करवाया है, बंटवारा ना हो उसके लिए आपने क्या करवाया? एक चिट्ठी लिखा दो माउंट बैटन को, आरएसएस के नेताओं ने एक चिट्ठी लिखी हो कि इस बंटवारे को हम मंजूर नहीं करते, हम इसका विरोध करेंगे। एक जगह पर एक धरना, एक मोर्चा, एक सत्याग्रह किया हो, उसका उदाहरण दिखा दो कि उन्होंने कहा हो कि हम असंतुष्ट हैं, हम ये नहीं हो रहे। मैं बोलना बंद कर दूंगा आप अगर एक भी उदाहरण मुझे दिखा सके तो, वो लोग भी मुझे वो उदाहरण दिखा सके तो मैं बोलना बंद कर दूंगा। अपने जो रहनुमा थे उनके सामने तो दोम हिलाने के सिवा वो जुबान भी नहीं खोल सकते थे। ये सारी बातें हमने समझना जरूरी है और इसीलिए हमने ये तैयारी रखना बहुत जरूरी है कि वो ये सारी चीजें करते रहे। कोई कहेगा कि गांधी तो जाहिर अनपढ़ था, उसके पास कोई डिग्री नहीं थी। कोई डिग्री ना होना अच्छा है फर्जी डिग्री होने से। आप कहते हो कि कोई डिग्री नहीं थी, वो नई डिग्री होने के बावजूद एक सल्तनत को हिला के दिखा दिया था। और फर्जी डिग्री वाला 3 महीने से अमेरिका का प्रेसिडेंट कहता है कि मेरे कहने पर सिंदूर ऑपरेशन बंद करवाया। वो लाल किले पे खड़ा होकर बोल सकता है कि भाई डोनाल्ड भाई गप्पे मारना बंद करो। क्यों? 56 इंच की छाती में पहुंचा हो गया। ये समझना जरूरी है कि झूठ ताकत नहीं देता, झूठ कायरता ही लाता है। और इसलिए वो लोग कायर है कि 100 साल से झूठ के झूठे अस्तित्व पे ही वो लोग जिंदा रहे। ये याद रखना बहुत जरूरी है। आपको मित्रों ने कोई सवाल, किसी को कोई सवाल? हाँ जी। हेलो, बापू સાથે જોડાયેલી અમદાવાદની 3 સંસ્થાઓ જ્યાંથી મોહનમાંથી મહાત્મા બન્યા. પેલું તો સાબરમતી આશ્રમ, કોચરબ આશ્રમ અને બાપુએ સ્થાપેલી ગુજરાત વિદ્યાપીઠ. બાપુની હત્યા કરનારા લોકો આજે એ ત્રણેય સંસ્થાઓમાં આધિપત્ય જમાઈ બેઠા છે. અને સાબરમતી આશ્રમની હાલત તો શું થઈ છે એ આપ સારી રીતે જાણો છો. તો એના બારામાં આપણું શું મંતવ્ય છે? એ જ હજુ એમાં ઉમેરો કરી દઈએ. થોડા દિવસ પહેલા જ કોચરબ આશ્રમમાં લગ્નનું રિસેપ્શન અને ત્યાં કેવું ગીત કંઈક બોલવાનું, કજરા રે ડીજે અને કજરા રે જેવું ગીત કોચરબ આશ્રમમાં ગવાણું. એટલે આ આશ્રમની પરંપરાઓ અને જે આખી આપણી જે પવિત્રતા જે છે એને લાંછન લગાડવાનું કામ પણ થયું છે. તેના સંદર્ભમાં પણ એક વાત કરું છું. अशोक कुमार पांडेयનું એક પુસ્તક છે उसने गांधी को क्यों मारा, એનું મેં ગુજરાતી કર્યું ગોડસે ને ગાંધી को क्यों मारा. અને ગઈ 30મી જાન્યુઆરીથી પહેલો પ્રયોગ એ દિવસે થયો. અમે એક વાચિકમ કાર્યક્રમ કરીએ છીએ 1.5 કલાકનો. એના 4 પ્રયોગો થયા. આ 30મી જાન્યુઆરીએ 5મો પ્રયોગ થશે. એક વડોદરામાં થયો, એક સુરતમાં થયો, એક અમદાવાદમાં થયા. થોડા દિવસો પહેલા ડિસેમ્બરના એન્ડમાં મેં
સાબરમતી આશ્રમના ડાયરેક્ટર અતુલ પંડ્યા મારા મિત્ર છે. મેં એમને અને એ કાર્યક્રમમાં આવી ગયા હતા, પ્રાચીકમ કાર્યક્રમમાં ગોડસે ને ગાંધી કો ક્યું મારા. એટલે અમે એ કાર્યક્રમ જોયેલો છે અમારો 1.5 કલાકનો ગીત સંગીત સાથે. એટલે મેં એમને ઈમેલ કર્યો કે 30મી જાન્યુઆરીએ અમારા તમારા આશ્રમમાં આપણે આ કાર્યક્રમ કરવો છે, તમે જરા આના વિશે મને જવાબ આપો. એટલે એમનો સામે તરત જ ઈમેલ આવ્યો કે 30મી જાન્યુઆરીએ અમારે એક નેતા એક કાર્યક્રમ ગોઠવાઈ ગયો છે, એટલે અમે તમને એ દિવસે આ કાર્યક્રમ કરવા માટે પછી મંજૂરી આપી શકીએ એમ નથી. એટલે અમે સામે બીજો ઈમેલ કર્યો કે ભલે 30મી જાન્યુઆરીએ ન ફાવે તો કંઈ નહીં, 29મી જાન્યુઆરીએ કરીએ, 31મી જાન્યુઆરીએ કરીએ, અથવા ગાંધી સાથે જોડાયેલા હોય મહત્વના એવા કોઈ પણ દિવસે અમે આશ્રમમાં આ પ્રાચીકમ કાર્યક્રમ કરવા તૈયાર છીએ. આપ મને જણાવજો. આજની તારીખ સુધી એનો કોઈ જવાબ નથી. આવો જ ઈમેલ મેં ગુજરાત વિદ્યાપીઠના વાઇસ ચાન્સેલર હર્ષદ પટેલને કર્યો છે, એનો આજ સુધી કોઈ જવાબ નથી. આ હકીકત છે. શું થયું છે, કયા કારણોથી થયું છે એ બધી ચર્ચામાં આપણે જવું નથી, પણ હકીકત આ છે કે આશ્રમ અને ગુજરાત વિદ્યાપીઠ બંને સંઘીઓના લગભગ હાથમાં છે અથવા એમના દબાણ. હું આનાથી થોડો વધારે કટ્ટર અભિપ્રાય રાખું છું. મારું માનવું છે કે જે લોકોને આ સંસ્થાઓ સાચવવા જે જવાબદારી અપાઈ હતી એ લોકોએ પોતાના સ્વાર્થ માટે જ આ સંસ્થાઓ વહેંચી મારી. એટલે જે हिंदी में जो कहा जाता है ना कि घर का भेदी घर को ढाए, वो सारी संस्थाएं हमारे ही परिवार के लोगों ने खत्म की है और उसका हम लोग नतीजा भुगतते हैं. हमारे मैं जब अहमदाबाद आता हूँ तो मेरी एक परंपरा रही है कि मैं हृदय कुंज जाए बगैर वापस नहीं जाता. मैं कल जाऊंगा वापस हृदय कुंज, सिर्फ ये सुनिश्चित करने के हृदय कुंज अभी तक सुरक्षित है कि नहीं, क्योंकि ये खतरा इसलिए है कि वहां क्या होने वाला है इसके बारे में किसी को पता नहीं. जिन लोगों ने कोर्टों में ये बात कही कि हम जानते हैं और हमने सब स्वीकृति दी है इस पूरे रीडेवलपमेंट के लिए, उनको भी जब पूछो कि आपने क्या देखकर स्वीकृति दी तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने उनके शब्द को स्वीकृति दी है. उन्होंने उनको शब्द दिया है कि हम कुछ नहीं होने देंगे, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे. जिनकी नीयत ही झूठी है उनके शब्द को क्या मूल्य दे सकते हैं, और वही हमें भुगतना पड़ता है. गुजरात विद्यापीठ हो या पोचराम आश्रम हो या साबरमती आश्रम, वही हम आज भुगत रहे हैं क्योंकि हमारे परिवार ने ही हमारे साथ बेवफाई की. जो विस्तृत गांधी परिवार, जिनको गांधी जन कहा जाता है, उन्होंने ही हाफ चड्डी पहन ली है. तो हम क्या कर सकते हैं? जब मैं कोर्ट में गया साबरमती आश्रम को बचाने को, तब कोर्ट में ये एफिडेविट दिया गया कि वो तो अकेला है, उसको कुछ काम धंधा नहीं है, इसलिए वो ये तमाशा करता रहता है, उसके साथ कोई नहीं है, आप बेफिक्र रहो, हम सब आपके साथ. ये शब्दों में नहीं कहा गया, लेकिन ये उसका अर्थ निकलता. सबने आके मुझे कहा तुषार भाई लड़ते रहो, मैंने कहा साथ चलो. नहीं, आप लड़ो ना, आप बहुत अच्छा लड़ रहे. ડર હજુએ છે, હજુએ ડર છે. અને એટલે જ જે વસ્તુને આપણે સંભાળીને રાખવી જોઈએ, એક પછી એક વસ્તુઓ બધી આપણે ગિફ્ટ રેપ કરીને એમને સોંપી રાખીએ. સૌથી વધારે ભોગવવાનું અમારો પાડે અમારા સમાજ. બિલકુલ. હરિજન આશ્રમ કહેવાતો હતો. દુઃખની વાત એ છે કે એના એક ટ્રસ્ટ પર કોઈ અમારો કોઈ એક હરિજન ને ઓફિસ બેરર તરીકે કબજી રખાયા જ નહીં.
નામ પૂરતા પરિસરમાં લોકોને રાખ્યા હતા. આજે તો એમાંથી કાઢી મૂક્યા. એટલે મારી માટે હવે ફક્ત એક જ એ છે કે સમજી શકાય એ વાત છે કે આખી ભાવનાત્મક અત્યારે એ સમય પણ છે કે જ્યાં ગાંધીના નામને અને ગાંધી સાથે જોડાયેલી દરેક સંસ્થાઓને અને એમના વિચારોને ખંડન કરવા માટેનું ખંડિત કરી દેવાનું એક ષડયંત્ર ચાલી રહ્યું છે. મનરેગા જે કાર્યક્રમ જે થયો, આપણે નામ ખબર છે કે મનરેગામાં પણ મોહનદાસ ગાંધીનું નામ એટલે આપણે એમજી જે છે એ નરેગા એટલે મનરેગા નામ તરીકે જ્યારે ઓળખાયું તો આ સંઘીઓને એટલો મોટો વાંધો છે કે એમાંથી પણ ગાંધીના નામને એ લોકો મિટાવવા માટેનો પ્રયાસ કરી અને બીબી ગ્રામજી યોજના લઈ આવ્યા છે. ગાંધી આશ્રમ, કોચરબ આશ્રમ, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, આ જે મહાત્મા ગાંધી દ્વારા શરૂ થયેલા એક સંસ્થાનો જે છે એને એ લોકો એમાં અનેક વિધિવત રીતે આરએસએસ ના માણસોને નિયુક્તિ કરી રહ્યા છે. આપણે જોયું છે કે અત્યારે વિદ્યાપીઠના વાઇસ ચાન્સેલર કોણ છે, એમને સવાલો આપણે પૂછ્યા તો જવાબ નથી. એટલે તુષારભાઈ અત્યારે એ ભાવુક બને. અને બીજું એમની એ વાત બી બહુ સાચી કે જે એમાં આશ્રમવાસીઓ હતા એને તો મજબૂર જ કરે છે છોડી દો, નહીં તો એવું પણ ત્યાં સુધી પહોંચ્યું છે કે હવે તમે કદાચ એવું બનશે કે સરકાર જો એવા મુદ્દા ઉપર ઉતરશે તો તમને કશું નહીં મળે. અને કશું નહીં મળે એવું જ્યારે હોય ત્યારે જે લોકો ત્યાં 50 વર્ષ, 60 વર્ષ, 70 વર્ષથી જે રહેતા હોય, જે પરિવારો જે 4 પેઢીઓથી, તો એને ત્યાં હવે બધું જ ગુમાવશું, પછી એની મજબૂરી થાય એવું બને. એટલે આ રીતે મજબૂર કરીને ગાંધીજનોને તુષારભાઈ એક જે સૌથી બીજી આખી ગુજરાતમાં જે ઘટના ઘટી રહી છે જેની ઉપર આપણે પ્રકાશ કદાચ હેમંતભાઈ પણ પાડી શકે, અમિતભાઈ પણ એની વિગતો જાણે છે, તુષારભાઈ આપણે એક પણ જે ગાંધીજનો દ્વારા શરૂ થયેલી સંસ્થાઓ, उत्तर बुनियादी लोकशाला जहां पे अभी मैं भारतीय समोसा के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ बैठा, उनके प्रेसिडेंट, तो बोले कि हमारा 150 का जो महकमा होता था वो 3 का लगा. सरकार जो है हमें कोई नियुक्ति करने के लिए दे ही नहीं रहे, तो हम करें क्या करें? ये सेम चीज हर विद्यापीठ को, हर आश्रमशाला को, हर लोकशाला को ये खत्म करके, ताकि मतलब गांधी विचार पनपे नहीं, गांधी विचार की चर्चा अगर ग्रासरूट पे होगी तो उनका सावरकर और गॉडसे नहीं चलेगा. और इसीलिए इसको खत्म करने की भी पूरी गुजरात में साजिश चल रही है. हम ये बात ये 3 संस्थाओं की करते हैं, लेकिन उसके भी एक बहुत अहमियत भरी संस्था जो बापू की प्रेरणा से यहाँ अहमदाबाद में बनी, मजदूर महाजन, वो संगठित कामगारों का सबसे पहला यूनियन भारत में बना था. आज जब कामगारों के अस्तित्व को मिटाने वाले, जैसे किसानों के खिलाफ के 3 कानून है कि कामगारों के खिलाफ के भी, कामगारों को वापस गुलाम, उद्योगपतियों के गुलाम बनाने वाले कानून जब हम पर लाए जा रहे हैं, तब अहमदाबाद ने ये नहीं भूलना चाहिए कि अपने दोस्त उद्योगपति होने के बावजूद उन्हीं की मिलों में स्ट्राइक करवाकर उनसे ये लोहा लिया था बापू ने कि तुमने मजदूरों का भला करना पड़ेगा, मजदूरों को ये उनकी मांगे जायज है, वो नहीं दोगे तो तुम्हारा काम बंद हो जाएगा. वो मजदूर महाजन भी आज एक निष्क्रिय संस्था बन के बैठ गई है. मजदूरों की लड़ाई में मजदूर, मैं साबरमती की बात करते करते भावुक इसलिए हुआ कि वो सिर्फ मेरे परदादा और दादी का घर नहीं था, उसमें मेरे दादा के दादी भी रहे हैं, मेरी बुआ भी बच्ची थी तब वहां रही थी, तो हमारे परिवार की का एक उसके साथ लगाव है. और अगर उसको खत्म कर दिया जाएगा तो मेरे पूर्वजों की सारी कार्य को मिटा देने की साजिश सफल हो जाएगी. यही एक तड़प है. ये तड़प ये भी है
कि जब लोगों में मेरी ये होती है प्रतिष्ठा, ये पहचान होती है कि मैं गांधी का भक्त होता हूँ, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो राष्ट्रपिता है, हम सब के भी उतने ही थे जितने तुम्हारे हैं। मैं उसको मना नहीं करता, मैं कहता हूँ जरूर वो जितने मेरे हैं उतने आप सब के हैं। लेकिन जब उनके धरोहर को बचाने की बात आती है तो आती है सीधी मेरे ऊपर कि तुम आगे आओ। जब उनको गाली दी जाती है तो मुझे कहा जाता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। तो ये जो बात है उसी के कारण वो लोग अपने मनसूबों में सफल होते जा रहे हैं। अगर गांधी मान्य है तो सबको मान्य होना चाहिए, उसका खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए। तो मेरा अस्तित्व आप लोगों में से किसी से कोई अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि विचार का जो की विरासत लेके जो चलते हैं वो डीएनए की विरासत लेके चलने वालों से कहीं ज्यादा अहमियत रखते हैं। ये बात हमने याद रखनी बहुत जरूरी है। तो अगर मेरे आंख में आंसू आते हैं तो आपके हृदय को टटोलने के लिए वो मेरे आंसू बह रहे हैं, ये याद रखिएगा। आपको भी मैं वो याद दिलवाता हूँ कि अगर मुझे दुख होता है तो आपको भी वो दुख होना चाहिए, आपको भी शिकायत हो। તુષારભાઈએ કહ્યું ને કે જુઠ્ઠાણું આમ તેમ બોલવું અને સાવ જુઠ્ઠું બોલવું એ એમની પરંપરા. એના બે ઉદાહરણો મહત્વના. એક જવાહરલાલ નહેરુએ 5મી ડિસેમ્બર 1948ના રોજ સરદાર પટેલ જે ગૃહ મંત્રાલયના ગૃહ પ્રધાન હતા એમને એક નોંધ લખી નહેરુ, અને એમાં એવું લખેલું કે આરએસએસ જે કંઈ કરે અથવા જાહેરમાં જે કહે છે એને અને એ જે કંઈ ખાનગીમાં કરે છે એની સાથે કશી લેવા દેવા હોતી નથી. આ ઉપરાંત નહેરુએ ફરીથી 3 ફેબ્રુઆરી 1949ના રોજ એ વખતના પ્રાંતોના મુખ્ય પ્રધાનોને જે કાગળ લખેલો એમાં લખેલું કે આરએસએસ એક એવું સંગઠન છે કે જે હંમેશા બોલે છે કંઈક અને કરે છે કંઈક. આ બે વખત નહેરુએ માત્ર 8-10 મહિનાના સમયમાં એ વખતે લખેલું. આભાર હેમંતભાઈ. સવાલો बीजा પણ હશે, પણ સમયની एक सवाल गणेश पूछना चाहता है तो वो ले लेते हैं और उसके बाद मैं अमित भाई को विनती करूंगा। और आज सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जयंती भी है और हम जब भी बात करते हैं तो गांधी, नेहरू, सुभाष, सरदार सबके साथ में बात करते हैं, तो इनको भी याद करते हैं। वंदे मातरम सर। जैसा कि अभी जिक्र हुआ कि एक सोच है जो लगातार संस्थाओं पर कब्जा कर रही है और उस कब्जे से निकलने के लिए महात्मा गांधी जी के आदर्शों के साथ जिस जैन जी को, जिस जनरेशन को हम जगाना चाहते हैं, वो 2 मिनट की मैगी खा के 2 मिनट की रील में जाना चाहती है। तो आज आप महात्मा गांधी जी के कौन से आदर्शों को ऐसे मानते हैं जिन पे हम कार्यकर्ता चल के ऐसे कुछ प्लानिंग बना के उन जैन जी को अपने साथ लाए ताकि कुछ आंदोलन खड़ा किया जा सके? आप प्लीज कुछ बताइए। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि मेरी पीढ़ी के जो लोग हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि भाई हम जो भाषा बोलते हैं वो जैनजी समझ नहीं सकता, और हमारी कमजोरी ये है कि जो जिस भाषा में हम सीखते हैं उसके सिवा हम कुछ नहीं बोल सकते। तो ये एक माध्यम की जरूरत है कि जो पर आपने मुझे ये पूछा कि बापू के कौन से तत्व को लेकर हम समाज में जा सकते हैं, वो जेनजी हो या कोई भी समाज हो, कोई भी जनरेशन हो। मुझे लगता है बापू ने जो जिम्मेदारी का एहसास दिया कि अगर कुछ चाहते हो तो उसके लिए जिम्मेदार भी तुम ही हो, तुमने प्रयत्न करना पड़ेगा वो देने। वही परिकल्पना उनकी जो आखिरी सत्याग्रही थी
ये इंडिविजुअल सत्याग्रह की लोग जब उन्होंने बात की कि हर सत्याग्रही अपना कप्तान होगा, अपना जनरल होगा और अपना ही सैनिक भी होगा अपने आप में, वो कल्पना हमने आज देनी चाहिए, क्योंकि आज एक ऐसी सोच आ गई है कि कुछ करना है तो वो करेगा, मेरी लायकात नहीं है ये सब करने की। तो ये बात, और जेनजी बहुत चीजें करना चाहता है, पर जेनजी को दबाए रखा जाता है कि भाई तुम्हारा कल है, आज तुम्हारा नहीं है। तो ये जो एक उनको इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है कि तुम कल की तैयारी करो, आज कुछ करने की जरूरत नहीं, उसमें से तुम्हारा अगर आज तुम्हारा नहीं है तो कल तुम्हारा नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार बना हुआ कल नहीं होगा, वो किसी और की इच्छा का कल होगा जिसके साथ आपको समझौता करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बापू की निष्ठा में से थी, जो बापू का तत्व था, वो स्वयं जिम्मेदारी का जो तत्व था वो था कि भाई कुछ अगर देखते हो, कुछ अगर बदलना है तो खुद बदलो, किसी और के बदलने की इंतजार में बैठे मत रहो। जेनजी वो जरूर समझेगा। माननीय अमित भाई, हाँ बात थोड़ा, हाँ अगर एक ही जब पूछ रही है तो मैं एक मौका देते हैं हमारे साथी। हाँ नमस्कार जी, आपको प्रसंग बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। मेरे प्रश्न है, वो कांग्रेस में 1885 दिसंबर 28 तारीख में वो सिंपल हस्तम गुर्तु में लेना, वो बिफोर सिंपल्स एक्सप्लेन मी प्लीज। पहला सिंबल क्या आता है? वो एक ही सिंपल है ना, हस्तम गुर्तु, वो चार सिंबल हैं, वो बिफोर सिंबल्स टू देयर आर टू ओके। इसकी हम अलग से जब बैठेंगे चर्चा करेंगे सेवादल के शिविर में कि हमारे सिंबल कैसे, चार सिंबल चेंज होते होते कैसे हुआ है, वो वी विल डिस्कस दिस लेटर ऑन। मैंने अमित भाई विनती करूं कि आप धन्यवाद करें। थैंक यू। આજે આપણા સૌના માટે આનંદની વાત છે કે સેવાદળની આ બેઠકમાં ખૂબ ઉમદા વિચાર, વાત અને જે સંઘર્ષ છે એની આપણને સૌને પ્રેરણા મળે એટલા માટે આપણી વચ્ચે તુષાર ગાંધીજી ઉપસ્થિત છે, ત્યારે એકવાર આપણે જોરદાર તાળીઓ સાથે હંમેશા ગુજરાતના ભૂતકાળ, વર્તમાન અને ભવિષ્યની ચિંતા કરી ખૂબ જ અભ્યાસ સાથે, ડેટા સાથે એક સ્પષ્ટ વક્તાના સ્વરૂપે હંમેશા લોક જાગૃતિ માટે લોકોની વચ્ચે જઈ અને કામ કરતા એવા પ્રોફેસર હેમંતભાઈ શાહને પણ આપણે આવકારીએ છીએ। આપણે સેવાદળના રાષ્ટ્રીય મુખ્ય સંગઠક લાલજીભાઈ, પ્રગતિબેન, બધા સેવાદળના સૌ સાથીઓનું સ્વાગત છે। અહીંયા બે વિષયો પર વાત થઈ મારા આવતા પહેલા। હેમંતભાઈ ગુજરાતનું ભૂતકાળ, વર્તમાન અને ભવિષ્યની ચિંતા કરી ને સામાજિક, આર્થિક, રાજકીય અને શૈક્ષણિકથી લઈને અનેક જે પ્રશ્નો છે, ચેલેન્જો છે, વર્તમાન પરિસ્થિતિ છે અને એના બાબતે ખૂબ વિસ્તૃત વાત કરી। અને એ જ રીતે તુષારભાઈ પણ ગાંધી વિચાર ને ખતમ કરવા માટે જે અત્યારે આરએસએસ થી ચાલતી આ સરકાર દ્વારા જે પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે, એક પછી એક નિર્ણયો કરીને આખી ગાંધી વિચાર પર હુમલા થઈ રહ્યા છે, એ બાબતે પણ વિસ્તૃત રીતે વાત પણ કરી છે। લાગણીસભર રીતે અપીલ પણ કરી કે જે દુઃખ એમને થાય એ જ દુઃખ ગાંધી વિચારમાં માનવા વાળા એક એક ભારતવાસીને પણ થવું જોઈએ। એક કોંગ્રેસી તરીકે આપણી સવિશેષ જવાબદારી છે
કે જેમ અંગ્રેજોનું પણ શાસન હતું ત્યારે પણ જે નીતિ રહી કે તમામ સત્તા અને સંપત્તિનું કેન્દ્રીકરણ થતું, મુઠ્ઠીભર લોકો દ્વારા મુઠ્ઠીભર લોકો માટેનું એ શાસન હતું અને બાકીના લોકોનું જે રીતે શોષણ થતું, જે રીતે ગુલામીમાં જીવવા માટે મજબૂર બનાવાતા અને જે સત્તાના જોરે લોકોનો અવાજ દબાતો, એ શાસનમાંથી લાગી આઝાદીની લડાઈ પછી દેશને આઝાદી મળી. અને એટલા જ માટે ગાંધીજીની જે હત્યા થઈ ત્યારે લોકોને એમ હતું કે ગાંધીજીની હત્યા કરીશું એટલે ગાંધીજીની સાથે સાથે એમના વિચારો પણ ખતમ થઈ જશે. પણ આજે પણ સાંપ્રત પરિસ્થિતિમાં પણ દુનિયાએ સાબિત કરીને બતાવ્યું કે ગાંધી ખાલી એક વ્યક્તિ નહોતા, ગાંધી વિચાર હતા અને ગાંધી અતીત ને ગાંધી ભવિષ્ય પણ છે. એ વાત આજે દુનિયામાં સાબિત થઈ ચૂકેલી વાત છે. એટલા જ માટે આખું વિશ્વ જ્યારે ગાંધીજીને, ગાંધી વિચારને રિસ્પેક્ટ આપતું હોય, એના પથ પર આગળ ચાલવા માટેની પ્રેરણાને વાત કરતું હોય, ત્યારે આ જ ભારત દેશમાં, આ જ ગુજરાતમાં, જ્યાં આપણું ગુજરાતમાં ગાંધીજી જન્મ ભૂમિ પણ છે, કર્મભૂમિ પણ છે, અહીંયાથી જ શરૂઆત થઈ, એ ભૂમિમાં પણ એમના નામને, એમના વિચારને ખતમ કરવા માટેના બધા જ પ્રયત્નો થાય છે. હમણાં જેમ વાત થઈ કે છેલ્લે રોજગાર ગેરંટી એક્ટની સાથે જે મહાત્મા ગાંધીજીનું નામ જોડાયેલું, એ નામ પણ ખતમ કરવામાં. અહીંયા સ્વચ્છતા અભિયાનની સરકાર જાહેરાતના પોસ્ટર મૂકે તો ખાલી ચશ્મા મૂકે, પણ ગાંધીજીનો ફોટો ના. અહીંયા મહાત્મા મંદિર બનાવે પણ મહાત્મા ગાંધી મંદિર ના બનાવે. એક એક વાત નો તમે અભ્યાસ કરીએ તો ધીમે 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 કરતા એને ખતમ કરવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. અને એમને ખબર છે કે એની સાથે જોડાયેલી સંસ્થાઓ હોય, સાબરમતી આશ્રમ હોય, કોચરબ આશ્રમ હોય, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ હોય, મજૂર મહાજન માટેનો હોય કે આખા ગુજરાતમાં એ માટેની શૈક્ષણિક ને સામાજિક સંસ્થાઓ હોય, એને ખબર છે કે આને ધીમે ધીમે ખતમ નહીં કરીએ તો આ એવી જગ્યાઓ છે કે જ્યાંથી ક્યાંક ને ક્યાંક નવી જનરેશન પણ પ્રેરણા લઈ કઈ એ વિચારોને પોતાનામાં આત્મસાત કરીને આગળ ફરી પાછી એ વિચારો માટે બોલશે, લડશે ને એને ખતમ નહીં કરી શકાય. એ સતત એવો પ્રયત્ન થાય છે. અને મારી આપ સૌને સેવાદળના સાથીઓને એટલી જ વિનંતી છે કે સેવાદળની સ્થાપનાથી શરૂ કરીને આજ દિન સુધી આપણો પણ મુખ્ય ઉદ્દેશ એ જ રહ્યો છે કે આ વિચારોને, આ કાર્યોને, સમાજમાં જે સમાનતાનો જે ભાવ છે, જે લોકશાહીની રક્ષાની વાત છે, જે સંવિધાનની રક્ષાની વાત છે, એ બધા જ મૂલ્યોને લઈને આપણે આગળ વધવાનું છે. એનો પ્રચાર પ્રસાર થાય, એના વાહક બનવાનું છે. અને સાથે સાથે જ્યારે પણ આવા ગાંધી વિચાર કે આપણા દેશના લોકશાહી મૂલ્યો પર, સંવિધાનની વાત પર હુમલા થતા હોય તો એને રોકવા માટે એક ઢાલ બનીને, એક સૈનિક બનીને લડવાનું પડશે. આજના સમયમાં હું માનું છું કે આપણો રોલ વિશેષ, સામેવાળા તો એમની નીતિ, એમના વિચાર, એમની વિચારધારા ખૂબ સ્પષ્ટ છે, પણ એ જ્યારે આપણી વિચારધારા, ગાંધી વિચારધારાને ખતમ કરવા પ્રયત્ન કરતા હોય તો એવા સંજોગોમાં એના રક્ષણ માટે એક મજબૂતાઈથી લડવાની જવાબદારી આપણા બધાની છે. કોંગ્રેસી તરીકે એક એક કાર્ય કરીએ છીએ, આપણે પણ એના માટે સજ્જ બનીએ, એના માટે મેદાન પર ઉતરીને સંઘર્ષ પણ કરીએ, એ કાર્યક્રમોને લઈએ. અને હું તો ખાસ લાલજીભાઈને પણ વિનંતી કરું કે એવી ટીમ બનાવીએ, ભલે વધારે લોકો ના હોય. જેમ દાંડી યાત્રાનો ઉલ્લેખ કર્યો, દાંડી યાત્રામાં કે હજારો લોકો નતા જોડાયા, થોડા લોકોએ શરૂઆત કરી, પણ જેમ જેમ આગળ વધ્યા તો હજારો લાખો લોકો જોડાયા પણ ખરા
અને એના કરતા એનો ઇમ્પેક્ટ જે હતો, એની જે અસરો હતી, એના કારણે અંગ્રેજોએ પણ ઝૂકવું પડ્યું. એક વિચાર માટે લડવા નીકળીશું ત્યારે શરૂઆતમાં તો ઓછા લોકો હતા, પણ લડવા માટેનો મક્કમ નિર્ધાર હશે, સ્પષ્ટ દિશા હશે ને વિચાર હશે તો હું માનું છું કે બલબલાને ઝુકાવી પણ શકશે. અત્યારે હેમંતભાઈ તો કદાચ સ્પષ્ટ ભાષામાં કીધું જ હશે કે મોદી અને આ સરકાર અને ગુજરાતની સરકાર ડબલ એન્જિન સરકાર ને હવે તો ટ્રિપલ એન્જિન સરકારો પણ હોય છે, એમાં કેટલો ભ્રષ્ટાચાર ચાલે છે, કેટલું શોષણ ચાલે છે, કેટલો અન્યાય ચાલે છે, કેટલો અત્યાચાર ચાલે છે, કેટલી લૂંટ ચાલે છે, ઉઘાડી લૂંટ ચાલે છે, આપણી આંખો સામે રોજબરોજ દેખાય છે. હું ચોક્કસ માનું છું કે એ લોકો આપણને ખતમ ઇલાકી વિચારધારાને ખતમ કરવા માંગે છે, દેશમાં લોકશાહી ખતમ કરવા માંગે છે, અને હવે તો સંવિધાને આપેલા અધિકારો પણ છીનવવા માંગે છે. હમણાં જોયું હશે કે આપણે અત્યાર સુધી વોટ ચોરીની વાત સાંભળી, અત્યારે SIR ની પ્રક્રિયા પછી જે ડ્રાફ્ટ યાદી આવી છે એમાંથી સાચા મતદારો છે એમના નામ કમી કરવા માટે પણ 10 લાખ કરતા વધારે ખોટા ફોર્મ ભરી અને આજે આખી ગુજરાતની મતદાર યાદીમાંથી સાચા મતદારો જે પણ ચોક્કસ ટાર્ગેટેડ લોકો નીકળી જાય અને એમનો મતનો અધિકાર જ છીનવાઈ જાય, જેથી કરીને આવનારી વ્યવસ્થાઓ નક્કી કરવામાં એમનો કોઈ રોલ ના રહે, એ દિશામાં પણ આગળ વધી રહ્યા. એટલે એ તો આગળ વધવાના જ છે, એ કોઈ એમની જાતે રોકાવાના જ નથી. એમને રોકવા હોય, આ બધી પરિસ્થિતિઓ, જે પ્રશ્નો છે, ફરિયાદો છે, કે મુદ્દાઓ છે, એને બદલવા હોય તો એના માટે એક જ વિકલ્પ છે કે ઘણો સંઘર્ષ કરીએ, ખૂબ સંઘર્ષ કરીએ, ખૂબ મહેનત કરીએ અને ટીમ સ્પિરિટ સાથે આવનારા સમયમાં લોકોની વચ્ચે જઈએ, એમની સામે મજબૂતાઈથી લડીએ અને લોકશાહીમાં વાતો, વિચારો, પ્રશ્નો ખૂબ હોય છે, એ બધાનું સમાધાન એક જ હોય છે કે જ્યારે જ્યારે ચૂંટણીઓ આવે ત્યારે ચૂંટણીઓમાં સત્તા પરિવર્તન થાય તો હું માનું છું કે આ ઘણા બધા પ્રશ્નો, અતિક્રમણ થઈ રહ્યું છે, વિચારધારા પર હુમલા થઈ રહ્યા છે, જે આપણી વિચારધારા કે લોકશાહી કે સંવિધાન ખતમ કરવાની વાત થઈ રહી છે, બધાને રોકવું હોય તો એમને એકવાર સત્તા પરથી દૂર કરવા પડે. અને સત્તા પરથી દૂર કરવા હોય, જેમ કે અંગ્રેજોને દેશ છોડવાની ફરજ પાડી તો એક વિચાર હતો, એક મુવમેન્ટમાં પરિવર્તિત થયો અને મુવમેન્ટને લીડ કરવા વાળા થોડા લોકો હતા, પણ એમાં પછી મક્કમતાથી આગળ વધ્યા તો તમામ આખો દેશ ને દુનિયા જોડાય. એમ અત્યારે પણ આ નવી લડાઈ છે, નવી આઝાદીની લડાઈ છે. ભલે થોડા લોકો હોઈએ પણ એક વિચાર સાથે મક્કમતાથી આગળ વધીશું તો આ નવા અંગ્રેજોને પણ આપણે 100% ઘર ભેગા કરી શકીશું. અને એમાં તમારા બધાનું યોગદાન, કારણ કે લડાઈ લડવાની કરીએ તો તોડા તો ખૂબ હોય, પણ વૈચારિક ક્લેરિટી વાળા વિચારધારાને વરેલા મક્કમતા સાથે લડવાનો જજ્બો ધરાવનારા સૈનિકો થોડા હોય ને તો બાકી બધાને પણ લીડ કરી શકીશું, બાકી બધાને સાથે પણ લઈ શકીશું અને સામે ગમે તેટલી મોટી સેના હોય તો એને પણ પરાસ્ત કરી શકીશું. ત્યારે આજે એક બાજુ સત્તા છે, સંપત્તિ છે, બધા ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ ને બધું જ છે, એ બધા સંસ્થાઓનો દુરુપયોગ કરે, સંવિધાનિક સંસ્થાઓનો પણ દુરુપયોગ કરે, સહકારી સંસ્થાઓનો પણ દુરુપયોગ કરે, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓનો પણ કરે, ધાર્મિક સંસ્થાઓનો પણ દુરુપયોગ કરે. કોઈ જાતની નીતિ, નિયમ કે શરમ એમનામાં છે નહીં. તો એની સામે લડવા માટે એક વિચારધારાથી જોડાયેલા કમિટેડ લોકોની ટીમ બનવી જોઈએ. અને હું માનું છું કે કમિટેડ લોકોની ટીમ બનાવવાની જવાબદારી ગુજરાતમાં કમસે કમ દરેક તાલુકામાં 2-5 લોકોની એવી ટીમ બને, એને તાલીમબદ્ધ કરીને તૈયાર કરીને લડાઈનું નેતૃત્વ કરવા માટે સક્ષમ બનાવવાની જવાબદારી સેવાદળની છે. ચોક્કસ વિનંતી સાથે, આગ્રહ સાથે કહું
કે ઓછામાં ઓછી દરેક તાલુકામાં 10 લોકોની આવી કમિટેડ ટીમ બને તો આવનારા સમયમાં આ વાતો જે અહીંયા થઈ, અહીંયા જે વિચાર રજૂ કર્યા, જે હકીકતો રજૂ કરી અને જે વર્તમાન પરિસ્થિતિ છે એ બધાને લઈને નીચે સુધી ઘર સુધી જવા માટેનું માધ્યમ આપણે બનાવી શકીએ. અને માધ્યમ બનવા માટે આપણે બધાએ વૈજ્ઞાનિક સાથે આગળ વધવું જોઈએ. એ વાત સાથે ફરીથી તુષારભાઈ અહીંયા આવ્યા, ખૂબ સરસ વાત કરી. આ રાજીવ ગાંધી ભવનમાં પણ એમને એ વાત કરવા માટેની વ્યવસ્થા થઈ બદલ લાલજીભાઈ બધા જ સેવાદળના મિત્રોનો પણ આભાર, અભિનંદન આપું છું. હેમંતભાઈનો પણ આભાર માનીએ કે સતત જ્યારે પણ સમાજને જગાડવાની વાત હોય, લોકોને નવું કંઈક માથું આપવાનું હોય, જે લઈને લડી શકે એ માટે હંમેશા તત્પર હોય છે. અને એમને પણ આપણે આભાર માનીએ. આવનારા સમયમાં બધા સાથે મળી અને એક વૈચારિક લડાઈ છે એમાં આગળ વધીએ એ વાત સાથે બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આભાર રવિભાઈ. તુષારભાઈ મને છે કે પ્રોટોકોલનો એકદમ શિબિર અને બીજું આપના શબ્દો અમારા માટે એટલા મહત્વના છે કે એમાં કોઈ પ્રોટોકોલનું એવું નહીં. આપ બિલકુલ આપણે તમારા મનમાં કંઈક આવ્યું જે કહેવું જરૂરી છે? બે વસ્તુઓ મને કહેવાનું લાગે છે. એસઆઈઆરની વાત થઈ એટલે 1951માં જ્યારે ભારતમાં प्रथम जब एसआईआर की बात हुई इसलिए मुझे लगता है कि ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में जो एसआईआर के बारे में चर्चा हो रही है, उसके ऊपर टिप्पणियाँ आ रही है, उसमें एक स्पष्ट चिंता हमारे न्यायाधीशों की दिखाई दे रही है कि कहीं ये एसआईआर की प्रक्रिया नागरिकत्व के ऊपर कोई हमला तो नहीं है. ये एक चिंता वो लोग भी दर्शा रहे हैं अभी. तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जब 1951 में प्रथम चुनाव हुए, जनरल इलेक्शंस भारत में हुए हमारा संविधान आने के बाद, तब सबसे पहला प्रश्न ये उठा कि नागरिक किसे माना गया, किस समीकरण से, किस एक व्याख्या से हम नागरिक का अधिकार देंगे. क्योंकि पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ था और भारतीय मूल के लोग यहाँ से वहाँ से यहाँ आए थे, और सब उन चीज़ों को भी हमने देखना जरूरी था. तो ये तय किया गया कि जिसका घर भारत की भूमि पर हो वो नागरिक होगा. फिर बात आई कि भाई मत देने का अधिकार किसको दिया जाएगा. तो भारत सबसे पहला राष्ट्र लोकतंत्र था जिसे एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है, कि भाई परिपक्व उम्र का व्यक्ति जो भी हो उसे मत का अधिकार मिलेगा उसमें. क्योंकि एक डिबेट ऐसा था कि बहुत अनपढ़ लोग हैं जिनको लोकशाही और मताधिकार की बाबत समझे भी नहीं, तो उनको वंचित करता है. ऐसे पढ़े लिखे लोगों को मत का अधिकार. इंग्लैंड में बहुत सालों तक वो हुआ था, अमेरिका में भी वो वैसे परंपरा लोकशाही में रही, जो अपने आप को बहुत ताकतवर लोकशाही कहते हैं, उनमें भी ये नहीं हुआ था. भारत ने ये तय किया कि नहीं, जो परिपक्व उम्र का होगा वो हर नागरिक मत दे सकेगा. तो पहले हमारे चुनाव में ये मंशा थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मताधिकार देकर उनको नागरिक होने का महत्व समझाए, कि उनको पता चले कि वो नागरिक है तो उनका कर्तव्य क्या है और उनकी अहमियत क्या है. ये समझ मतदान से मिले. आजाद भारत में सबसे पहली दफा अब ये हो रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि आपको मताधिकार है कि नहीं, ये आप साबित करो. आज तक कभी भी ये कहा हुआ नहीं है कि आप, सबसे सादा बात थी कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाओ. पहले 21 साल का, राजीव गांधी ने 18 साल किया. 18 साल जिसको हो जाए उसको मताधिकार मिल जाता था, ऑटोमेटिक ये माना जाता था. ये पहली दफा है और ये शुरुआत उस बात की है कि मताधिकार के बाद नागरिक अधिकार भी आपसे छीन लिया जाएगा. एसआईआर में वही किया जाएगा.
आखिर में नागरिकत्व पे ही जहाँ आके बात अटक रही। बंगाल और असम में क्या हो रहा है वो हम सब जानते हैं, वो धीरे धीरे पूरे भारत में होने वाला है। तो ये बात अमित जी ने जब SIR की बात की तो मुझे लगा कि ये धरोहर भी हमने जानना बहुत जरूरी है कि हमारे राष्ट्र निर्माण के जो निर्माता थे उन्होंने क्या व्याख्या नागरिकों की और मतदान के अधिकार की थी और आज उसको कैसे भ्रष्ट किया जाता है वो समझना बहुत जरूरी है। दूसरी एक स्वार्थी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि कल शाम को नवजीवन में मेरी किताब लेट्स किल गांधी उसका गुजराती अनुवाद वो हुआ है, उसका प्रकाशन कल नवजीवन में किया जाएगा। शाम को 5 बजे नवजीवन में जो ऑडिटोरियम है उसमें होने वाला है। आप सबको मैं मेरी तरफ से निमंत्रण देता हूँ। उसमें ये वो वाली किताब का भी गुजराती ગાંધી સેસેસિંગ ગોડસે ગોડસે उसका भी ગાંધીનો હત્યારો ગોડસે એનો અનુવાદ મેં કર્યો છે। અમારા બંનેના પુસ્તકનું વિમોચન આવતીકાલે સાંજે 5 વાગે નવજીવન પ્રેસમાં છે। आप सब निमंत्रित છો। આપ આવીએ। મોટાભાગના લોકો આથી છે, પરંતુ હું આપણા પ્રમુખશ્રીને પણ વિનંતી કરીશ કે આપણી સિસ્ટમ દ્વારા મેક્સિમમ લોકોને જાણ થાય એવું કોઈકને આપણે અમદાવાદ શહેરમાં પણ કહીએ, કારણ કે આ બંને પુસ્તકો આપણે જે વિચારધારાની વાત કરીએ છીએ એ એના સંદર્ભમાં છે। તો એ નવજીવનમાં આવતીકાલે અમદાવાદ શહેરમાંથી અને જે લોકો અમદાવાદમાં રોકાણ આવે મેક્સિમમ લોકો એમાં જાય એ જરૂરી છે। आज की मीटिंग मतलब हम लोग ये सेशन खत्म करने से पहले कुछ मैं अपेक्षा रखता हूँ कि जब मिले हैं तो कुछ तय करके निकले। 30 जनवरी बहुत नजदीक आ रही है, तो कम से कम गुजरात में सेवादल के साथी जो हैं वो अपने जिले में एक संवाद का कार्यक्रम जरूर करें। उस क्षेत्र में जो भी कोई गांधीयन है, गांधीजन है या कोई वहाँ में वरिष्ठ कोई पत्रकार है, वरिष्ठ कोई साहित्यकार है, किसी को भी साथ रख के कि आज के इस संदर्भ में गांधी क्यों ज्यादा रिलेवेंट है उस संदर्भ में आप अपना एक कार्यक्रम करें। गांधी निर्माण दिन के तौर पे आप और चर्चा भी होनी चाहिए कि गॉडसे ने गांधी को क्यों मारा, उस पर चर्चा होनी चाहिए। ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि उससे विचारधारा की लड़ाई जो है वो शुरू होगी। नहीं, ये भी जरूरी है कि इस बार 30 जनवरी को आप ये बात का भी आग्रह देके जिक्र करें कि जब हम गांधी के शहादत के दिन का आयोजन कर रहे हैं तभी उनके हत्यारे अपनी शताब्दी मना रहे हैं। ये याद लोगों को करवाना बहुत जरूरी है। ये जरूर से आप कहिएगा कि एक तरफ हम गांधी की शहादत को सराह रहे हैं और दूसरी तरफ उनके हत्यारे जो हत्यारे विचार है वो अपनी शताब्दी बना रहा है। ये बात समाज में भूलने, हमने समाज को भूलने नहीं देना, ये जरूर आप एक तो वो बात। दूसरी जो है कि हम लोग हर महीने महीने का अंतिम संडे और उसके पहले के 2 दिन यानी कि फ्राइडे और सैटरडे, ये 3 दिन का गुजरात में हर 3 दिन शिविर होता है। देवेंद्र भाई, अमिता और ये सब लोग, विश्वनाथ, विशाखा, सब लोग जो है, गणेश यहाँ पर है, ये पूरा उसका एक प्रोसेस को आगे चला रहे हैं और देश भर से लोग उसमें आते हैं 3 दिन का। तो गुजरात से ज्यादा लोग अब जुड़ते जाए ताकि गुजरात का कैडर जो है वो मजबूत हो। मैं लास्ट में अपेक्षा जो रखता हूँ वो भारत भर में करीब 30 साल के बाद सेवादल की मेंबरशिप की ड्राइव शुरू हुई है और संसाधनों की कमी की वजह से सेवादल कमजोर भी होता जा रहा था क्योंकि प्रशिक्षण कैंप नहीं हो रहे थे। अब मैं उस मेंबरशिप ड्राइव के बाद आपको ये कहना चाहता हूँ कि गुजरात में कोई भी कैंप करना चाहे, आपको किसी के पास किसी संसाधन के लिए हाथ खाने पीने के लिए लंबा करने की जरूरत नहीं है। वो सेवादल का सेंट्रल टीम की ओर से आपका हो जाएगा। आप सिर्फ कार्यकर्ता निर्माण का कार्य करिए, व्यवस्थाओं की अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उसके लिए आपको अपने जिले में मेंबरशिप ड्राइव करना बहुत जरूरी है। जो सेवादल में कम से कम 100 सदस्य नहीं बनाएगा वो सेवादल का पदाधिकारी नहीं रहेगा आने वाले समय में। ये भी निर्णय सेंट्रली लिया है
कि जो कार्यकर्ता निर्माण नहीं कर सकता है उसको पद रखने का कोई, हमारा नारा क्या है, काम नहीं तो पद नहीं, अब कोई सिफारिश नहीं। राष्ट्रगान के साथ आज का कार्यक्रम यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं। राष्ट्रगान शुरू करेंगे। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय विश्राम।